afternoon, educationists, students, teachers, and parents from across the country and abroad. Welcome to the second webinar under Uday, The Rising, a series of webinars exploring the potential opportunities for schools, the teachers, and the top. The novel coronavirus brought about the lockdown. The school gates closed, but opened up a whole new avenue of schooling. That is why perhaps our age-old educationists like Gandhi and Tagore told us education is the only respite. That is the only our answer to all the challenges, especially the education which is in connection with nature and life. That is exactly why I think today we have almost 2,000 attendees from 200 plus schools across the country and abroad to listen to an exclusive interaction with Mr. Anurag Tripathi, Secretary CBSE. It's such a proud moment for us from DPS CHAS. Thank you, sir, for joining us. First and foremost, I take this opportunity to extend a note of warm welcome to our honorable guest, an individual who needs no introduction, yet let me try, please. He is an academician, an educationist, an adept administrator with huge contributions to social commitment, and is at the helm of affairs with regard to education in our country. The individual whose continuous and enthusiastic ideation has been instrumental in implementing innovative ideas in schools in the country. None other than Secretary CBSE, Mr. Anurag Tripathi. Welcome, sir. Warm greetings to all our directors, principals, teachers, students, and parents who have registered in such large numbers and are present here online to hear, sir, on the topic relevance of schooling in this pandemic time under Uday, The Rising, a series of webinars for all stakeholders, that is the parents, teachers, and students. This is basically planned and organized under the mentorship of our chief mentor, Dr. Hemlata S. Mohan, Chairperson, CCRT, a lady under whose guidance and inspiration we've all grown up. Thank you, ma'am, and welcome. Quality education during COVID-19 crisis, I think, is a momentum from lockdown to the new normal. The new normal is going to have a framework in which there will be a large dependence on digital technology. There will be a lot of ease in the virtual interactions, and there will be a lot of proceedings which we have never ever adopted before. However, it's a moment of pride, a proud privilege to tell you that in DPS CHAS, we have had some innovative implementations. Our virtual classroom has the highlights of an ordinary, normal things, everything that should be holistic for the children. It includes a prayer, yoga, physical exercises, reading time, creativity time, curiosity time, culinary activities, and the most important of all, a circle time, wherein we try to get the feedback from parents. Dear participants, being a teacher almost all my life, I believe all education, somewhere or the other, is supposed to bring the child, the mind of the innocent child, out of the box. It is somewhere to unsettle the mind towards curiosity. It should go towards a horizon which is so very, very wide that he just needs a little bit of encouragement from the teacher. There should be so much of the teacher's role basically that be of a facilitator and
The child is ready to jump so high that nothing is beyond his capture, nothing is beyond his limits. To proceed with clarity towards such a kind of schooling, towards such a kind of curriculum, to understand the very relevance of schooling in this pandemic time, and more, on behalf of everybody here in DPS CHAS and this entire educational fraternity, I welcome on board Sri Anurag Tripathi. Sir, the event is yours. Thank you, Salja ji. Once again, thanks a lot for inviting me on this platform. Thanks मुरली जी आपको इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए और एक बड़ी संख्या में एजुकेटर्स को जिनकी जरूरत है एजुकेशन के लिए उनको जोड़ने के लिए। आज इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे सारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मेरी तरफ से शुभकामना और उनका स्वागत, वेलकम। पैंडेमिक के समय में, कोविड-19 के समय में जो संकट है वो सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही नहीं है, वो संकट सबसे बड़ा हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर के भी है और वो संकट लोगों के रिलेशंस को लेकर के भी है, कल्चरल सोशल डेवलपमेंट को लेकर भी है। शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते आप सबको महसूस हो रहा होगा कि इस संकट के समय में एटलीस्ट हमारे स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन है। हमारी जो सबसे ट्रेडिशनल टीचिंग सेटअप रहा है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही, वो फेस टू फेस होती रही। स्कूल बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चे न अपने टीचर से कांटेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही बच्चे अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं। तो एक संकट का समय है। मैं यही प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जटिल समय, कठिन समय बहुत जल्दी समाप्त होगा। हमारे स्कूल खुलेंगे, बच्चे वापस हंसते खिलखिलाते हुए हमारे स्कूलों में दिखाई पड़ेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने फुल मोड में दोबारा शुरू होगी और जो ये गैप इस समय हो रहा है, वो गैप को किसी न किसी तरीके से हमारे टीचर और प्रिंसिपल और पेरेंट्स मिल करके फिल कर लेंगे, मुझे यही उम्मीद है। एक शुभकामना आप सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को मैं ये भी देना चाहूंगा कि पैंडेमिक के समय में ऑलमोस्ट हमारे 100% सीबीएसई स्कूल्स ने अपने को ऑनलाइन क्लासेस के रूप में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर लिया। ये कठिन कार्य था, आसान नहीं था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत सारे स्कूलों में अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे घर में अवेलेबल नहीं थी। टीचर्स सारे ओल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, उनको ये प्रैक्टिस भी नहीं थी, लेकिन रातों रात आप लोगों ने उनको ट्रेंड किया, बच्चों को ट्रेंड। आई होप कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। जी सर, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मैं अपनी बात को एक बार फिर यहाँ रिपीट करूंगा कि आप टीचर्स को, प्रिंसिपल को, पेरेंट्स को मैं कांग्रेट्स करता हूँ, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने को इस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों से कनेक्ट हो गए और लर्निंग गैप नहीं होने दिया। जुलाई में फिर हमारे स्कूल खुल चुके हैं, आप लोग अगेन अपने बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लैब्स के माध्यम से कनेक्टेड है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी प्रोसेस प्रॉपर अपने फुल मोड में चल रही होगी। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि चूंकि ये पैंडेमिक टाइम है और बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं, तो शिक्षा के जो 4 डोमेन है, जिसमें पेरेंट्स आते हैं, जिसमें टीचर्स आते हैं, जिसमें मैनेजमेंट आता है और जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, इन चारों का रोल भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। हमारे घर अब स्कूल की भूमिका में आ गए हैं, हमारे पेरेंट्स अब टीचर की भूमिका में सुपरवाइज कर रहे हैं, मैनेजमेंट को नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई फैसिलिटीज के साथ बहुत सारी चीजें घर तक पहुंचानी पड़ रही, और स्टूडेंट्स जो अपने टीचर से फेस टू फेस सीखते थे, अपने दोस्तों के साथ पीयर लर्निंग करते थे, उनको अब अपने घर में डिजिटल माध्यमों से वो सारी चीजें अपने भीतर डेवलप करनी है।
सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेना है उनको, बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेना है, बच्चों को अपना इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट भी अगर कुछ करना है तो सारी चीजें घर की बाउंड्री वॉल में है। तो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया और इसमें एक मेजर रोल पेरेंट्स के ऊपर आ गया है, जिनको ट्रेंड करने की, पेरेंटिंग करने की, कन्विंस करने की जिम्मेदारी आप प्रिंसिपल्स और टीचर्स के हाथ में। अभी तक क्या होता था कि सुबह से दोपहर तक, शाम तक बच्चे आपके पास होते थे, अब वो घर में है। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ जैसा बिहेव करेंगे, जैसा एटीट्यूड रखेंगे, जैसा टाइम डिवोट करेंगे, जैसा इंस्पायर करेंगे, जैसा मोटिवेट करेंगे, बच्चे वही आगे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर इस समय ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने पेरेंट को कन्विंस कर लिया, पेरेंटिंग पर आपने ध्यान दे दिया, अवेयर कर लिया, आपने घर में बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए पेरेंट्स को टूल दे दिए, तो आपका काम आधा आसान हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, पहली चीज, फर्स्ट रिक्वेस्ट आप सारे प्रिंसिपल से, टीचर से, कि कृपया अपने पेरेंट्स को उस रूप में अब ना लें जैसा पेंडेमिक के पहले था। आप पहले साल में 1 या 2 बार पीटीएम करते थे, 1 या 2 बार उनसे मिलते थे, और उसमें भी मोर देन 40%, 50% पेरेंट्स कई बार नहीं आते थे। आते भी थे, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते थे। आपको अब ये बदलना होगा। आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसका सुपरवाइजर की भूमिका पेरेंट की होगी। पेरेंट को टाइम भी देना होगा, सुपरवाइज भी करना होगा, मॉनिटर भी करना होगा, और बच्चों से बड़ा सिंपैथेटिक तरीके से, इमोशनल तरीके से उनको इंस्पायर और मोटिवेट भी करना होगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि सीखने के लिए सबसे अच्छी जरूरत होती है वातावरण की, इन्वायरमेंट की, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर की। और वो एटमॉस्फेयर अगर घर में नहीं होगा तो बच्चे नहीं सीख सकते। तो बच्चे तनाव मुक्त रहें, बच्चे दबाव मुक्त रहें, बच्चे घर में किसी तरह का प्रेशर नहीं झेलें, घर की छोटी छोटी जो निगेटिविटी है उससे दूर रहें। इसमें पेरेंट का रोल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे वेबिनार अपने टीचर और अपनी एजुकेशन की दुनिया में कर रहे हैं, रेगुलर ऐसे ही अपने पेरेंट्स को ट्रेंड करने के लिए उपयोग करें। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दे के जाती है। किसने सोचा था कि इस तरह से हम लोग ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार करके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हजारों लोग जुड़ जाएंगे। ये नई चीज है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसका उपयोग आप पेरेंटिंग में करिए। छोटी छोटी मूवीज, छोटी छोटी क्लिप्स, छोटे छोटे मैसेजेस कि पेरेंट्स के लिए कैसे जरूरी हैं। तो पहला निवेदन यह है कि आप जैसे सेमिनार आज हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसे आप लोग अपने स्कूल के सारे पेरेंट को ग्रुप वाइज, एज वाइज बच्चों के अकॉर्डिंग जोड़िए, उनसे बात करिए, उनको कन्विंस करिए और उनको बताइए कि उनकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय अब क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें, देखिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं बड़े सामान्य शब्दों में कह रहा हूं, अल्टीमेटली स्कूल बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, सिखाने के लिए होते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं और सिखा नहीं रहे हैं तो शायद हम एक कदम पीछे हैं, और सीखने के लिए इस समय घर के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हों और आगे बढ़ें। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, जो रेवोल्यूशन ला सकता है, जो चेंज ला सकता है, जो पूरे एजुकेशन के पैराडाइम को शिफ्ट कर सकता है, वो होता है टीचर। आपने अच्छा टीचर रिक्रूट कर लिया, उसको लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे, अपग्रेड करते रहे उस टीचर को, और नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए सब्जेक्ट से, दुनिया के नवाचारों से, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं एजुकेशन से, अवेयर करते रहे, तो आपका टीचर एसेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपका टीचर कैपेबल नहीं है, अगर आपका टीचर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, अगर आपका टीचर अच्छा स्टोरी टेलर नहीं है, तो आने वाले 35 वर्षों तक जब तक आपके स्कूल में है, आपकी पीढ़ियों को भी खराब करेगा। कि दूसरी जरूरत है एज ए प्रिंसिपल आपको इसको जांचने की और असेस करने की कि आपके पास कौन सा टीचर है जो एक्चुअली टीचर है, जो कम्युनिकेटर है, जो स्टोरी टेलर है, जो थिएटर का मास्टर है, जो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, जो सेंसिटिव तरीके से बच्चों से जुड़ता है, जिसके पढ़ाने में नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी लेवल पहुंचता है। एक होता है टीचर सिर्फ ज्ञान देता है, वो एक होता है जो बच्चों को प्रयोग कराता है, जीवन से जोड़ता है, रोजगार से जोड़ता है, इवेल्युएट कराता है, क्रिएट कराता है। और बच्चे जब क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाते हैं तो टीचर का काम सबसे आसान हो जाता है। वही रियल ऑब्जेक्ट है एजुकेशन। दूसरा पिलर आपका टीचर्स है,
और दिस इज द टाइम, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने टीचर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी सेमिनार में इस बात को और जिक्र कर रहा था कि यह तो सबसे अच्छा समय है कि शायद पहले प्रिंसिपल को समय नहीं मिलता होगा टीचर के क्लासरूम में बैठने का। आपके पास अगर 100 क्लासरूम है तो प्रिंसिपल सारे क्लासरूम में नहीं बैठ सकती थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के समय में प्रिंसिपल कभी भी अपने टीचर की क्लास को रिकॉर्डिंग सुन सकती है, उसकी क्लिपिंग देख सकती है। प्रिंसिपल कभी भी टीचर के क्लासरूम में किसी भी जगह बैठ सकती है। इस समय तो आपके लाइव क्लासरूम में, ई क्लासरूम में बच्चों के साथ पेरेंट भी हैं, और पेरेंट और बच्चों के साथ प्रिंसिपल भी हैं, और इसके अलावा आप उसमें काउंसलर को भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जो ट्रेनर है उनको भी ऐड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली। तो मैं सारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो एजुकेशन का पिलर है, पूरा बैकबोन है टीचर्स, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव क्रिएटिव करने के लिए, उनको कम्युनिकेटिव बनाने के लिए उनकी क्लासरूम में आप ज्वाइन करें और एनालाइज करें कि वो टीचर किस लेवल पर है। 1 मिनट आप रुकेंगे? तो बोला कर ले लूंगा। ठीक ठीक। आप जी सॉरी। तो मैं ये दूसरा पिलर जो आपका टीचर का है, हालांकि आप सारे पुराने लोग हैं, प्रिंसिपल से बड़े-बड़े स्कूल चलाते हैं और अच्छे स्कूल चलाते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि बच्चे जो छोटे-छोटे होते हैं, सबसे ज्यादा निरीह वो होते हैं, और टीचर अपने वन वे टीचिंग करते हैं, टीचर अपनी डिक्टेटरशिप रहती है, टीचर का अपना ज्ञान रहता है, टीचर की अपनी कैपेसिटी रहती है, और बच्चे उसमें खास परिवर्तन नहीं कर पाते। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कृपया प्रिंसिपल अपने टीचर की कैपेसिटी देखें, उसका कम्युनिकेशन लेवल देखें, उसके सब्जेक्ट की मास्टरी देखें, उसका बच्चों से रिलेशन देखें किस तरह है, उसको ये भी चेक करें कि टीचर बच्चों से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्लास कितनी इनोवेटिव है, उसमें आर्ट इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, उस टीचर की क्लास में सब्जेक्ट इंटीग्रेशन अक्रॉस द सब्जेक्ट कैसा हो रहा है, थीमेटिक, बेसिकली सीबीएसई की पूरी स्कूलिंग जो है वो थीमेटिक है। हो सकता है कि आप हिंदी में इंग्लिश पढ़ रहे हो सकता है इंग्लिश में मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में सोशल साइंस पढ़ रहे हो। जब आप बच्चे को वाटर पढ़ाते हैं और वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो आप बायो में भी लेके जाते हैं, आप ज्योग्राफी में भी ले जाते हो, लिटरेचर में भी लेके जाते हैं। जब आप कोई प्लांट पढ़ते हैं तो उस प्लांट में आपकी कल्चर भी आती है, आपकी सोसाइटी भी आती है, आपकी लैंग्वेज भी आती है, उस प्लांट में आपका लैंग्वेज भी आती है, सारी चीजें आती है। तो ये ब्यूटी हमारी है कि हम अलग अलग विषयों की बाउंड्री होने के बावजूद हम सारे विषयों को इंटीग्रेट करते हैं, आर्ट इंटीग्रेट करते हैं, स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करते हैं, एथिक्स इंटीग्रेट करते हैं। ये प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि वो देखें उनके टीचर अपने क्लासरूम में ये सारे काम कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वन वे टीचिंग हो रही है, सिर्फ नॉलेज मिल रही है, सिर्फ रट रहे हैं बच्चे, 100 में 100 नंबर लेने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, या इससे 10 कदम दूर इनोवेटिव और क्रिएटिव भी हो रहे हैं, जॉयफुल भी हो रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं जीवन से जोड़ भी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, स्किलिंग भी हो रही है, कॉम्पिटेंसी भी हो रही है। तब हम मानेंगे आपकी क्लास आपकी क्लास सही हो रही है। तो दूसरा निवेदन मैंने आप प्रिंसिपल से किया कि कृपया आप ये ध्यान रखें कि आपके टीचर की कैपेसिटी बढ़े, उसके लिए आप उनको ट्रेन करें, काउंसलर यूज करें, ट्रेनर यूज करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएं, और अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद टीचर में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो कृपया उससे रिक्वेस्ट करें कि कोई और कार्य करे, क्योंकि वो फिर बच्चों का उससे बड़ा नुकसान होगा। तीसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय पैंडेमिक के समय में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा करके, टीचर्स को ट्रेन करके, प्रिंसिपल की पेडागोजिकल लीडरशिप डेवलप करके अपना रोल बढ़ा सकता है। देखिए, सिर्फ बाउंड्री वॉल के अंदर, सिर्फ बिल्डिंग के अंदर बच्चे नहीं जा रहे हैं, बाकी क्लासेस तो चल रही हैं, बाकी सारे कार्य हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट का रोल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतें भी मैनेजमेंट को हो रही होंगी। बहुत सारे स्कूलों में फीस नहीं आ रही होगी, बहुत सारे स्कूलों में टीचर को प्रॉब्लम हो रही होगी, सैलरी नहीं मिल पा रही होगी, बहुत सारे स्कूलों में इस तरह की स्थितियां होंगी कि पेरेंट्स को ये लग रहा होगा कि जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो हम बाकी कंट्रीब्यूशन कैसे करें। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आपके यहाँ होगी, बहुत सारे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उनके लोन्स पर होती हैं, चीजें नहीं हो पा रही।
ये एक संकट का समय है जब हमें मालूम है कि ये संकट मैनेजमेंट के सामने भी है, लेकिन पेरेंट्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, टीचर्स मिल करके, कोलैबोरेट करके जब समस्या का समाधान करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो चीजें एक लेवल तक सॉल्व होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये समस्या भी खत्म होगी। और एक चौथा इंपॉर्टेंट जो मैं बार-बार बात करता हूँ, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। अल्टीमेटली हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन हम आज तक चाइल्ड सेंट्रिक नहीं हो पाए। हमारी एनसीएफ, हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारा करिकुलम सारी बातें कहता है चाइल्ड सेंट्रिक, लेकिन मैं तो चैलेंज करता हूं प्रिंसिपल्स को भी कि अपने टीचर की क्लासरूम में बैठ करके देखिए वो क्लास स्टूडेंट सेंट्रिक है या चाइल्ड सेंट्रिक, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में प्रिंसिपल ज्वाइन करें और देखें वो क्लासेस चाइल्ड सेंट्रिक हो रही कि नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, क्योंकि 40 बच्चे 40 तरीके से होते हैं। मैं एक जरूरी बात इस समय आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, और आप सब पुराने और सीनियर और एजुकेशनिस्ट हैं। ये कहते हम सारे लोग हैं कि क्लासेस टीचर सेंट्रिक नहीं चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। जब हम टीचर से बोलते हैं तो उनका कहना है कि 40 तरह के विद्यार्थी होते हैं, 40 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, हम 40 टाइप से उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे करें। वहां सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग। जिस दिन आपकी टीचर की हैबिट पड़ गई बच्चों को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग देने की, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देने की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की, हर बच्चा उसको अपने अकॉर्डिंग रिसीव करेगा। और ये पैंडेमिक समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपनी रोट लर्निंग को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पर शिफ्ट कर जाइए। सबसे आसान तरीका यह है, आप सारे प्रिंसिपल्स अपने टीचर्स को गाइड करें कि जो कल टीचर को पढ़ाना है उसको एक दिन पहले बच्चे पढ़ें। आप छोटी सी क्विज भेज दें, उनमें क्वेश्चन पूछने। द मोमेंट आप टीचर स्टार्ट करता है चैप्टर, इंस्टेड कि वो टीचिंग शुरू करे, बच्चों से क्वेश्चन शुरू करे। तो जब बच्चों से आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, तो बच्चे फिर उसका आंसर देने के लिए क्रिएटिविटी का सहारा लेंगे। और आप देखेंगे कि बिना पढ़ाए हुए जो प्रश्न आप पूछते हैं, ऑलमोस्ट उसका मैक्सिमम आंसर आपके टीचर को बिना पढ़ाए हुए बच्चे दे देंगे, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, लंबा अनुभव। तो सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे शिफ्ट करना अब जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि टीचर वन वे टीचिंग करते रहें और बच्चे वन वे रिसीवर की तरह रिसीव करते रहें। उसका तरीका यही है कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें, एक्टिविटीज दें, बच्चों को असाइनमेंट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले दें, और क्लासरूम में टीचर पढ़ाने की जगह क्वेश्चन पूछे, एनालिसिस करे, ग्रुप एक्टिविटी कराए और बच्चों को इंस्पायर करे। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, ये नई चीज है, लेकिन धीरे धीरे अगर टीचर इस पे बच्चों को शिफ्ट करा दी, देन आपके बच्चों की क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई हो जाएगी। देखिए, हमारी आबादी 130 करोड़ की है, 130 करोड़ हमारी आबादी है। अगर हम देखें कि हम कितने साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, कितने इन्वेंशंस कर रहे हैं, कितने ओलंपिक मेडल्स ले रहे हैं, कितने आविष्कार कर रहे हैं, तो हम बहुत पीछे हैं इस क्षेत्र में। और उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम अपने स्कूल में, जड़ों में, घरों में बच्चों को इस तरह का वातावरण ही नहीं देते हैं। छोटे छोटे देश, स्विट्जरलैंड जैसे देश, वहां हमसे ज्यादा आविष्कार होते हैं। छोटे छोटे देशों में हमसे ज्यादा इन्वेंशंस होते हैं। ऐसे देश जिनकी आबादी जो है 10 करोड़ भी नहीं है, वो हमसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल ही नहीं ले रहे हैं, नोबेल प्राइजेस ले रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारी आबादी 40 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों है? आप लोग तो अच्छे हैं, अच्छे स्कूलों को देखते हैं, अच्छे घरों के बच्चे आ जाते हैं, आपको फीस भी दे देते हैं, लेकिन 40 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, क्यों ये स्थिति है? इसमें इस सब चीजों के पीछे अगर एक चीज देखी जाए तो है एजुकेशन, शिक्षा। हम शिक्षा को जमीनी स्तर तक या तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और अगर हम स्कूलों में शिक्षा भी दे भी रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं जो जरूरत है। हम नॉलेज दे रहे हैं, हम 5 सब्जेक्ट रटा रहे हैं। आपने कभी देखा, आज ही सवेरे में किसी को सुन रहा था, आज ही सुबह, आप जितने चैप्टर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, कभी टीचर प्रिंसिपल ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ाते हैं? कभी किसी टीचर ने सोचा है कि वो लाइट क्यों पढ़ाता है, वो कार्बन क्यों पढ़ाता है? कभी आपने सोचा है इस चीजों को कि हम जो है मैथ के फार्मूले क्यों पढ़ाते हैं?
कि हम एक धर्रे पे पढ़ाते चले जाते हैं और तब तक 12th के बाद बच्चे निकल जाते हैं और जिसको जहां जिंदगी बनानी होती बना लेता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल, टीचर, एजुकेशनिस्ट और पेरेंट्स इसको सोचें कि एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करना, एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है बच्चों की स्किलिंग करना। स्किलिंग मीन्स बच्चे फ्लेक्सिबल हों, बच्चों में लीडरशिप आए, बच्चों में कॉम्पिटेंसी आए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आए, बच्चों में इनोवेटिवनेस आए, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आए। और ये सब आएगी आपके उन्हीं 5 विषयों के माध्यम से, 5 सब्जेक्ट्स के माध्यम से। कैसे आएगी? जब आपका टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे शिफ्ट करेगा। जब आपका टीचर आपके बच्चे को रटाने की जगह डिस्कवरी मेथड पे शिफ्ट करेगा, क्यूरियस बनाएगा, प्रश्न पूछेगा। आप छोटा बच्चा आपके सामने है, आप उस बच्चे से प्रश्न पूछिए और सिंपली उस बच्चे से कोई प्रश्न पूछिए, आप उत्तर दे देंगे, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपका टीचर उत्तर देना शुरू कर देगा, उस दिन आपकी क्लास में कभी भी इनोवेटर्स नहीं निकलेंगे। आपके टीचर को तो सबसे लास्ट तक बच्चों को इंस्पायर करना है, उत्तर बच्चे निकालें। तो मैं ये चौथी रिक्वेस्ट आप सारे लोगों से कर रहा हूं कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास होने का एक ही उपाय है, चाइल्ड सेंट्रिक क्लास होने का एक ही तरीका है कि आप अपनी क्लास को एक्सपीरियंशियल क्लासरूम के रूप में, आप अपनी क्लासेज को एप्लीकेशन बेस्ड क्लास के रूप में, आप अपनी क्लासेज को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग के रूप में शिफ्ट करें। और ये नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। अगर आप मेरी बात को सिर्फ स्पीच के रूप में लेंगे कि 1 घंटे हमने सुना और फिर निकल गए, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग पेरेंट भी हैं, सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल नहीं है, आप पेरेंट भी हैं, आपके घर में 2 बच्चे भी हैं। उनको एक बार रिव्यू करें कि क्या आपके दोनों बच्चे जो बनना चाहते थे बन गए, जो इंसानियत आनी चाहती थी वो आपके दोनों बच्चों में आई, जो सिटीजनशिप आनी चाहिए आपके अपने 2 बच्चों में आई। आपके बच्चे सेंसिटिव हैं, आपके बच्चे ईमानदार हैं, आपके बच्चे इनोवेटिव हैं, आपके बच्चे आपका ध्यान रखते हैं, आपके बच्चे आसपास का ध्यान रखते हैं। उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर आप देखिए कि आप बड़े स्कूल में क्या कर सकते हैं। सर काफी 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स, और ये चारों का कोलैबोरेशन इस पैंडेमिक के समय में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चारों कोलैबोरेट करेंगे तभी आपकी एजुकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी और स्किल्ड बेस्ड होगी। और जब एजुकेशन को आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाएंगे, रिसर्च ओरिएंटेड बनाएंगे, इनोवेटिव क्रिएटिव बनाएंगे, तब आपकी कक्षाओं से, आपके शहर से, आपके समाज से ऐसे लीडर्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे इनोवेटर्स निकलेंगे जो नई नई चीजों को लेकर के आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं समअप करते हुए मुरली जी को और आप सारी पूरी टीम को जो यहाँ पर हैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। सर काफी सारे जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं। इफ यू परमिट जो है कुछ क्वेश्चंस जो है अगर आप कर लें, डायरेक्ट ले लें तो। सर्टेनली बिल्कुल। Right. Shailaja ma'am, can you please take up the question? I think Ram, if you can just set the first question. Good evening, sir. My name is Nandita Parkal Nair. I'm studying in class 10, United Indian School, Kuwait. My school has tried its best to conduct online classes and provided sufficient study materials. But I miss my real life classroom experiences and inspiration and motivation that I get from my teachers in a classroom. How soon can I expect that kind of schooling during the pandemic time? Thank you. Thank you, Nandita. This is a pandemic time. Even I do not know then that when school will open. So I think we should wait till the normalcy period. And I am very much hopeful that after 1 or 2 or 3 months, school will be open in shift manner, in piecemeal manner. It may be. हमें मालूम है कि बच्चे दोस्तों के साथ और टीचर के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वही उनके विकास का सबसे अच्छा माध्यम भी होता है डेवलपमेंट का। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें, आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें, और किसी तरह का कोई खतरा या डेंजर आपके ऊपर ना हो। तो मैं यही आपसे कहूंगा और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर में रह करके भी आप अपने दोस्तों से और टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं,
क्योंकि जब आप दूर होते हैं तो और सेंसिटिव होते हैं, जब आप दूर होते हैं तो और आपको याद आती है। जब आप अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, अपने माँ बाप से 1000 किलोमीटर दूर होते हैं तो इमोशनली और कनेक्टेड रहते हैं। तो मेरा आंसर यही है कि इमोशंस हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, बट फिजिकल और आसपास की दूरी इस समय जरूरी है। उसके लिए आप वेट करें गवर्नमेंट अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन का, और जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूल में हम जाने देंगे। जी सर, हर कोई स्कूल बनाइए, यही मेरा सजेशन है। जी 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 सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पेरेंट, जस्ट टेक इट अप। Hello everyone, I am Gladys, mother of Aditya Julius, who is studying in class 10th. Now these days online classes is going on, so I am quite satisfied with the classes and also the support which is provided by the school. But I am very much worried, how will the current scenario impact the upcoming board exam? Thanks. उन्होंने जो है कैमरा जो है थोड़ा उल्टा पकड़ लिया। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस समय कोविड ने हमारे स्कूलों को भी उल्टा कर दिया है। जी सर, ठीक है ना, जो काम स्कूल का वो घर कर रहे हैं अब जो है। जी, थैंक यू मैम फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाले हैं, और जो बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम अपने समय पर होंगे। हमने 30% सिलेबस रिड्यूस किया जिससे बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें। हमें उम्मीद करते हैं कि टीचर उस रिड्यूस सिलेबस से भी बच्चों का अवेयर कराएंगे जिससे लर्निंग गैप ना हो। जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, बोर्ड एग्जाम हम तभी ले पाएंगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम्स का टेंशन तो आप जो है फरवरी तक छोड़ दीजिए। अभी आपको ये सोचना है कि इस समय बच्चों का लर्निंग गैप नहीं बढ़े और बच्चे सीखते रहें। तो एज ए पेरेंट आप देखिए कि आपका बच्चा एटलीस्ट 4-5 आवर्स घर में सेल्फ स्टडी कर रहा हो, अपने टीचर से कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हो, जिससे ये समय उसका खराब ना हो। क्योंकि जब कोविड समाप्त होगा और जब स्कूल खुलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 से 8 महीने का समय बर्बाद हो गया या बेकार हो गया। पेरेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वर्कशीट्स दे रहे होंगे, ग्रुप्स में आपको व्हाट्सएप मैसेज में एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स दे रहे होंगे। करना किसको है? आपके बच्चे को। तो पेरेंट की जिम्मेदारी यह है कि देखें कि वो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको बच्चे इमेच्योर होते हैं, अभी बच्चे इमेच्योर हैं। आप पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, गाइड करके इस समय जो स्कूल गाइडेंस दे रहा है उसको पूरा कराना। और स्कूल हम उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को भी ऑनलाइन माध्यम ही नहीं, वो प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के माध्यम से भी इन्वॉल्व कर रहा होगा, तमाम सारी कल्चरल सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर रहा होगा। तो बोर्ड एग्जाम की चिंता कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, स्थितियां नॉर्मल होने दीजिए, और उतना ही बोर्ड एग्जाम में हम पूछेंगे जितना आपका बच्चा पढ़ा होगा, जितना स्टडी किया होगा। वो नहीं पूछेंगे जो स्टडी उसने नहीं की होगी। जी जी सर, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। If you tell me, I will listen. If you show me, I will see. If you let me experience, I will learn. Hello everyone, this is Reenu Sharma, teacher at Delhi Public School, Chas. How do I, as a teacher, engage the parent for maximum effectiveness in the deliverables? Sir. Okay. थैंक यू मैम। बिल्कुल सही आपने कहा कि, और ये सत्य है कि सबसे ज्यादा वही याद रखते हैं हम जो अनुभव करते हैं। जो पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हमेशा याद रखते हैं। और आपने बड़ा सटीक प्रश्न किया कि हम पेरेंट से कैसे कनेक्टेड हो, पेरेंट से कैसे जुड़े। और मैंने शुरू में ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत, जो पहला पिलर मैंने बोला था, आज पेरेंट हो गए हैं और पेरेंट से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे आज आप मुझसे कनेक्टेड है वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू। पहले क्या होता था कि आप पेरेंट पीटीएम मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे तब आ पाते थे। कुछ स्कूल पेरेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल रखते हैं और समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको अवेयर करते रहते हैं। सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस ही नहीं, स्कूल की एक्टिविटीज और उनके रोल के बारे में भी अवेयर करते रहते हैं। इस समय सबसे अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जब आप पेरेंट्स से अपने जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न और बहुत सारे टीचर इसमें जुड़े हुए हैं। मैं यही कहूंगा
कि एक टीचर के पास, जैसे डॉक्टर होता है, जब आपका कोई परमानेंट डॉक्टर हो और आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, आपको कोई शुगर हो या कोई और, तो वो टीचर आपकी एक डायरी मेंटेन कर लेता है और सारी चीजें रेगुलर वो नोट करता रहता है। एक टीचर जो है बच्चों का डॉक्टर होता है। 1 साल के लिए आपके बच्चे आपके पास हैं जिनको आपको 1 साल तक डेवलप करना है, सिखाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपनी क्लास के 40 बच्चों की सारी चीजें उस टीचर के पास रहती हैं। बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की हैबिट्स किस तरह की हैं, बच्चे के पेरेंट्स किस तरह से बच्चे से ट्रीट कर रहे हैं, उस बच्चे के बाकी सब्जेक्ट टीचर किस तरीके से हैं। इवन क्लास टीचर की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उसको पता रहे कि उसकी उस पर्टिकुलर क्लास में किस सब्जेक्ट टीचर से बच्चे परेशान हैं, किस सब्जेक्ट टीचर की चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, कौन सब्जेक्ट टीचर बच्चों से मिसबिहेव करता है, कौन सब्जेक्ट टीचर बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर करता है। तो क्लास टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास टीचर के पास पूरी कुंडली, जिसको जन्मपत्री कहते हैं, वो बच्चे की जरूर होगी। और जब टीचर सेंसिटिव होगा, बच्चों का दोस्त होगा, उनसे प्यार करता होगा, उनकी पीठ पर हाथ रखता होगा, जब बच्चों को कोई कमी फील होती होगी, बच्चे जब बच्चे कोई गैप फील करते होंगे तो सपोर्ट करता होगा। अगर टीचर ऐसा होगा तो उसकी क्लासरूम में लर्निंग कई गुना बेहतर होगी। सबसे पहले जरूरत होती है कि टीचर अपने बच्चों से कनेक्टेड हो इमोशनली। अगर टीचर बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड हो गए, मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा कि अपने टीचर में कौन सी एक चीज देखना चाहते हो, या आप याद करो कि आपकी सबसे अच्छी टीचर कौन थी। मालूम है क्या उत्तर दिया बच्चे ने ये उत्तर दिया पर्टिकुलर टीचर के बारे में कि वो मुझे इंस्पायर करती थी, ऑलवेज सपोर्टिव थी। लगता था कि जब मैं परेशान हूं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप इमेजिन करिए, कोई बच्चा ये नहीं चाहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, कोई बच्चा नहीं चाहता कि आप उसको दिन भर पढ़ाएं रटाएं। बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से, कि आप उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, स्पार्क दें, इग्नाइट करें, माफ करें, सपोर्ट करें। बच्चे तो सीख जाएंगे। यही रोल पेरेंट्स का है। तो एज ए टीचर आप वेबिनार और सेमिनार के माध्यम से अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करें और पेरेंट की पेरेंटिंग करें। ये बहुत जरूरी है। जरूरत हो तो ग्रुप में और जरूरत हो तो इंडिविजुअल। और कुछ ऐसे पेरेंट अगर आपको लगता है तो उनको छोटी छोटी पेरेंटिंग पर वीडियो क्लिप्स भेजें, मूवीज भेजें, मैसेजेस भेजें, उनको लेकर के चलें। ये कठिन कार्य है, आसान नहीं है, लेकिन ये हमारी और आपकी ड्यूटी। अगर आप टीचर बन गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी भूमिका का निर्वाह करें। जी सर, the next question is from a student again. Hello sir, my name is Shreshman and my question to you is, what educational reforms should we students be looking forward to after this pandemic ends? Thank you. थैंक यू बेटा। अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो जो मैंने पहली रिक्वेस्ट की है, मैंने टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट और स्टूडेंट चारों से की है जी जी सर, कि अब क्लासरूम को रोट लर्निंग की जगह प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शिफ्ट करना चाहिए। ये 2000 पहले जो शिक्षा पद्धतियां थी, आज से नहीं, 1000 ईयर 2000 ईयर पहले भी यही होता था कि बच्चे अनुभव करके सीखते थे। चाहे बच्चे शस्त्र की शिक्षा लें या शास्त्र की, चाहे खेती सीख रहे हो, चाहे विज्ञान सीख रहे हो, चाहे गणित के फार्मूले सीख रहे हो, चाहे कारपेंट्री सीख रहे हो, चाहे वो फार्मिंग सीख रहे हो, चाहे मेडिसिन सीख रहे हो, चाहे वो वुडन वर्क सीख रहे हो या मैसनरी वर्क सीख रहे हो, करके सीखते थे, अनुभव करके सीखते थे, टच करके, प्रयोग करके सीखते थे। आज की जो क्लासरूम है, जिस बच्चे ने प्रश्न किया है, मुझे नहीं मालूम कि बच्चे ने प्रश्न सोच समझ के किया है या पूछने के लिए किया, लेकिन बड़ा सटीक प्रश्न है। और मैं सारे बच्चों को इस चीज को कहना चाहूंगा कि अपनी क्लासेज को पीछे मुड़ करके देखो, अपनी क्लासेज को पीछे मुड़ करके देखो। 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ाई कैसे हुई थी। टीचर आती थी, किताब खोलती थी, फार्मूले या चैप्टर या सब्जेक्ट या लैंग्वेजेस की डेफिनेशन बताती थी, कॉपियों में आप नोट करते थे। कुछ टीचर हो सकता था उसको इंटरेस्टिंग कर दें, एक्सपीरियंशियल कर दें, मजेदार बना दें और चली जाती थी। यही होती थी। अगर यही होती थी तो पैंडेमिक के बाद अब ये बदलेगी और आपको बदलना है। और क्या करना है, अब आपको टीचर पर डिपेंडेंसी ये नहीं रखनी है कि वो आपको पढ़ाए। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग लेंगे, आप अपने आप क्यूरियस होकर के प्रश्न बनाएंगे। और जब टीचर आपकी 40 मिनट की वेब सेमिनार में आए, जब ई क्लास में आए, तो डाउट क्लियर करिए।
जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप डाउट क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आफ्टर पैंडेमिक आपकी क्लासेज को जो शिफ्ट करना है, सबसे पहले तो रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल या लर्निंग बाय डूइंग या एप्लीकेशन, या मैं फिर कहूंगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आप शिफ्ट कर जाएं। उसका बेस्ट तरीका है खुद पढ़िए और जहां डाउट हो वो अपने टीचर से पूछिए। और दूसरी चीज, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिर कहने जा रहा हूं कि दूसरा चीज, असेसमेंट भी आपका बदलेगा धीरे धीरे। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते थे और वो एक हद तक वो भी रोट लर्निंग को बढ़ावा देते थे। तो आपको मैं सूचना दे दूं सारे बच्चों को और पेरेंट को कि इस वर्ष क्लास 10th में 20% एंड क्लास 12th में 10% क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। उसका उत्तर किताबों में नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल थिंकिंग लानी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप 20% का जवाब दे पाएंगे। हम क्वेश्चन पेपर चेंज करें और 2025 तक 2025 तक 100% क्वेश्चन पेपर आपके शिफ्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्सपीरियंशियल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर। तो पैंडेमिक के बाद ये शिफ्टिंग हो रही है और ड्यूरिंग पैंडेमिक टीचर स्टूडेंट्स मिल करके इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें उतना ही बेहतर होगा। जी जी सर, अगला सवाल एक पेरेंट से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार। नमस्कार। मेरा बेटा नमी कुमार बैद DPS चास क्लास 6A का विद्यार्थी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DPS चास को कि इस कोरोना काल में भी जहाँ एक तरफ काफ़ी बच्चों की पढ़ाइयाँ हैम्पर हो रही है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके बहुत हद तक उस पढ़ाई के नुकसान को मेकअप करने का काम किया है। परंतु मेरा एक सवाल है, कोरोना काल में काफ़ी आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हुई हैं और इस कारण जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी संसाधन हैं उनकी हम व्यवस्था कैसे करें, इस पर मैं चाहूँगा कि CBSE हमें सुझाव दें। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये कि बच्चा क्लास 6 में है और छोटा बच्चा है, मैं यही कहूंगा कि क्लास 6-7 तक के बच्चों के टीचर पेरेंट भी होते हैं और पेरेंट थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो टीचर की भूमिका में उन बच्चों को सिखा सकेंगे। सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चाहे इंग्लिश हो चाहे लैंग्वेज हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके बहाने सारे पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि आप टीचर की भूमिका अपनाते हुए उन बच्चों के साथ जुड़ें, उनकी किताबों को पढ़ें और उनको भी समझाने का प्रयास करें। बच्चे को भी आनंद आएगा और आपको भी आएगा। दूसरा ये कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको आज नहीं तो कल लेनी ही पड़ेगी, कोविड रहे या कोविड ना रहे। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके जीवन का हिस्सा है। आपके पास मोबाइल फोन होगा, वो बच्चा मोबाइल फोन के थ्रू पढ़ सकता है। आपके पास लैपटॉप, टैब या कंप्यूटर होगा, उसके थ्रू कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि जिन पेरेंट्स के पास टैब या लैपटॉप नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करने का माध्यम यह है कि आप अपना छोटा सा बजट कंट्रोल कर लीजिए महीने का। बच्चे की 6 महीने 3 महीने की कोई बड़ी इच्छा को उसको कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जरूर दे दीजिए, क्योंकि इसके थ्रू उसकी लर्निंग आगे बढ़ने वाली है। जिनके पास नहीं है, लेने के अलावा दूसरा उपाय नहीं। और मैं स्कूल मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे गरीब बच्चे भी स्कूल में हो सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं आस पड़ोस के। अगर उनके पास नहीं हो सकता है, स्कूल अपनी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आसपास के लोगों को जोड़े, आसपास के इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़े और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन बच्चों को प्रोवाइड कराए, डोनेट कराए, सपोर्ट कराए, जिससे उनकी भी लर्निंग गैप ना बढ़े। जी जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। Good evening, sir. I Bulbul Saab and I Lakshmi Verma from Mithila Public School of class 12. सर, हम सब स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और हमें ये जानना है कि जैसे एकेडमिक को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस और सिलेबस कम किया जा रहा है, तो क्या स्पोर्ट्स को लेके कुछ प्लानिंग है कि नहीं, आगे चल के हम लोग को खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट ईयर है स्कूल का। उसके बाद फिर हम लोग अपने स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स फील्ड में,
Sir, we are national player and we want to know if this year CBSE has organized any tournament or not. That's all, sir. ओके, थैंक यू बेटा। मैं स्पोर्ट्स को लेकर के यही कहूंगा कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और सीबीएसई ने मिल करके कुछ एक्टिविटीज कुछ समय पहले ऑर्गेनाइज की थी। आपके फील्ड गेम तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन देयर आर मेनी गेम्स जो इंडिजिनस गेम्स हैं जो आप घर में कर सकते हैं अपनी एजिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी मसल पावर बढ़ाने के लिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप घर में कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ यही मैं उत्तर दूंगा कि अगर आप बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की या उसके सिलेबस की, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप फील्ड में करते थे अगर नहीं कर पाएंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही हम कम करेंगे, और जो चीजें आप घर में कर सकते हैं, बचे हुए कर सकते हैं, उसी बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करें और नेशनल इंटरनेशनल गेम में आगे बढ़ने के लिए इस समय का उपयोग कैसे करें, मैं यही कहूंगा कि घर में जितना आप कर सकते हैं अपनी फिजिकल उसको मेंटेन करने के लिए वो आप करने का प्रयास करें। और जब स्कूल ओपन होगा आफ्टर फ्यू मंथ जब ओपन होगा तो आपको खुला मैदान मिलेगा अपनी पूरी ताकत दिखाने का। जी, थैंक यू सर। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello everyone, my name is Shifa Praveen and I am a student of Standard 10th studying in Delhi Public School, Chas. I agree with the fact that it is the need of the hour to continue the learning process through virtual classes as the situation calls for it. But I love my school and my friends. I felt joyful working in a team with my classmates, and I'm really missing the joy of teamwork in virtual learning. What can be done about this? Sir. मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप अपने दोस्तों को अपने वीडियोज भी भेज रहे होंगे, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे लेटर भी लिख रहे होंगे, अपनी कुछ पोएम्स और पोएट्रीज क्रिएटिव तरीके से लिख करके अपने ग्रुप पर डाल रही होंगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप फेसबुक के थ्रू या कॉलर के थ्रू या आप अपने टेलीफोन या फोन के माध्यम से उनसे कनेक्टेड भी होंगे। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब आप अपने दोस्तों से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल सकते, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया है, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, जिनके थ्रू आप फेस टू फेस उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैं कह रहा हूं कि जब आप फील करें कि आप किसी से बहुत ज्यादा आपको याद आ रही है, मिस कर रहे हैं टीचर को, दोस्तों को, तो अपनी कलम उठाइए और उसको एक स्टोरी लिख दीजिए, उसके लिए एक पोएम लिख दीजिए, उसके लिए एक ड्राइंग बना दीजिए, एक पेंटिंग बना दीजिए, उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दीजिए, कुछ अच्छी चीज पढ़ करके उसको भेज दीजिए। दीज आर द क्रिएटिव थिंग्स जिसके थ्रू आप उनको खुश भी रख सकते हैं और आपका मन भी लगा रहेगा। लेकिन कोविड चूंकि संकट का समय है और आपकी हेल्थ भी बचे रहना जरूरी है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने घर में रहें और जब ये सब ठीक होगा तब आप उनसे मिलिए और उसका पूरा आनंद लीजिएगा। जी, राइट सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Good afternoon, sir. I am Shilpi Parashar, teacher at DPS Chas. Virtual classroom has aided us with many technological tools and has brought parents, students and teachers on the same platform. My question is, what resources, training and personnel will support their social and emotional needs during this COVID era? Thank you. Thank you. Good afternoon. थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद करूंगा कि हमारे टीचर्स जो हैं वो टीचर्स जो सीबीएसई के डिफरेंट मैनुअल से उनको रीड कर रहे होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सब्जेक्ट वाइज है आप उनको पढ़ते होंगे, एजुकेशन पॉलिसी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आप उससे जरूर जानते होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप साइकोलॉजी, बच्चों के साइकोलॉजी के मास्टर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर वो नहीं होता है जो बच्चों को आ करके बुक से पढ़ाता है। टीचर वो होता है जो बच्चों के भीतर छिपी हुई बुक को बाहर निकालता है। हर बच्चे के भीतर सारा संसार छुपा हुआ है, सारे सब्जेक्ट का मास्टर है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। एक अच्छा टीचर उसके भीतर खोज करता है,
उस बच्चे को क्यूरियस बनाता है, उस बच्चे को इनोवेटिव क्रिएटिव बनाता है, उसको इंस्पायर करता है। तो पहली रिक्वेस्ट आप टीचर से ये है कि आप देखें कि जो आपकी टीचिंग है उस टीचिंग में आपके बच्चे सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग कितना कर रहे हैं, क्यूरियस कितना बन रहे हैं, इनोवेटिव कितना बन रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने प्रश्न किया है, आप टीचर हैं और आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया इस समय कि इस समय इस ऑनलाइन क्लास के समय में मेंटल और सोशल हेल्थ वेलबींग को लेकर के हम कैसे ध्यान रखें। मैं यही कहूंगा टीचर से कि ऑनलाइन माध्यमों से अपने बच्चे से कनेक्टेड रहें, इमोशनल उसको सपोर्ट करें और ये मान के चलें कि बच्चों के लिए भी कठिन समय है। अगर बच्चे कोई चीज नहीं सीख पा रहे हैं, कोई गलती कर दे रहे हैं, तो उनको बार बार इंस्पायर करें उनको करने के लिए। अगर आप इस समय अपने बच्चों को इमोशनल कनेक्ट देंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो ये समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आप चूंकि टीचर हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप टीचिंग कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। देयर आर मेनी ट्रेनिंग कोर्सेज जो ऑनलाइन है। मैं फिर कहूंगा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किस टीचर ने कितने ट्रेनिंग कोर्सेज को ज्वाइन किया? एक तो होता है जो सीबीएसई, एनसीईआरटी और डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप अपनी टीचिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेंगे, आप उतना आगे जाएंगे। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो कोई ना कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करें और आप देखें कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये दोनों चीजें इस समय टीचर के लिए जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Hello all, this is Archana Dwivedi. Question comes to my mind is, when the normal school begins and how safe is my child at school? Thank you. Hello. मैं आई थिंक ये प्रश्न एक या दो बार आ चुका और मैं यही उत्तर दूंगा कि हमें भी नहीं मालूम है कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ एक ऐसा संकट है जिसमें हमारे देश में ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। ये होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ये मिल करके निर्णय लेगी कि कब स्कूलों को खोलना, और ये निर्णय तभी लेगी खोलने का जब स्थितियां सामान्य होंगी, नॉर्मल होंगी, जब चीजें खतरे से बाहर होंगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान हो, और जब तक नहीं खुलता घर कोई स्कूल बनाइए, घर कोई कार्यशाला बनाइए और अपने बच्चे की जो भी चीजें उनको सुपरवाइज करते हुए स्कूल को सपोर्ट करिए और उसको ट्रेन करने का प्रयास करिए। जी जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Good morning, sir. I am Srijan Sinha, a student of class 10 at DPS CHAS, and I have appeared for my board examinations this year. My question is, with schools not opening for so long and boards promoting students based on internal assessment or average performance in other subjects, what is the future for students hoping to get admission in the top colleges and universities of the country and appearing in competitive exams? थैंक यू। आई थिंक आप क्लास 10th में हैं, आपका बोर्ड रिजल्ट अगले कुछ दिनों में आएगा और आपका क्लास 11th में एडमिशन होगा। तो ये चिंता अभी अगले 2 वर्षों तक आपको नहीं है। अभी 2 वर्षों तक आप CHAS बोकारो में पढ़ते रहिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहिए। ये चिंता उन बच्चों के सामने ज्यादा है जिनका इस बार क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स सारे के सारे बंद हैं। तो बेटा पहले तो मैं ये बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बच्चे प्रमोट नहीं किए गए हैं। इंटरनल असेसमेंट एक एक्स्ट्रा माध्यम था। ज्यादातर स्कूलों ने अपनी क्लासेस के एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए, चाहे वो 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे वो 10th हो। तो अगर क्लास 10th के रिजल्ट की बात है तो हमने आपके एग्जाम ऑलमोस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, और अगर कोई विषय बच्चे का छूट गया था तो बाकी विषयों के आधार पर हम वो नंबर देंगे और बच्चा अपना मार्कशीट प्राप्त करेगा। तो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे नॉर्मली बच्चे नहीं प्रमोट किए गए। कुछ स्कूल हो सकता है जहां परीक्षाएं नहीं हो पाई हो तो कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया। दूसरा, जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट निकलेगा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय है, क्योंकि रिजल्ट आपका मई में आता था, एडमिशन आपके जून जुलाई में होते थे और पढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब जुलाई में आपका रिजल्ट आने वाला है और हम मान के चल रहे हैं कि अगले 2 महीने बाद आपके कॉलेज में एडमिशन होंगे, वो भी तब जब कॉलेज खुलेंगे। मुझे भी नहीं मालूम कि कब खुलेंगे, कब स्थिति होगी।
तो ऐसे बच्चे जो 12th बोर्ड से निकल रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है। IIT के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तो थोड़ा सा ये चीजें आगे बढ़ेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो होगा सबके साथ, और ये अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया में है। हमारे स्कूल बंद हैं तो विदेशों के स्कूल भी बंद हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फॉरेन के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारा रिजल्ट अगर डिले होगा तो उनका भी रिजल्ट डिले हो रहा है, हमारे बच्चे इंटरनल असेसमेंट पे प्रमोट हो रहे हैं तो उनके भी हो रहे हैं। स्थिति ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो सबके साथ बराबर होगा। जी थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन। Hello sir, my name is Rajshekar. Ever since I was a student, I always had this urge to meet up with the policymaker and ask him a few questions. Unfortunately, while I was a student, I never had that opportunity. And now that I have this opportunity, I thought I might as well maximize on this and ask you a few questions, if you may, sir. Coming from a science student's perspective, if a student can't feel the heat of a flame from a science experiment in the lab, will their brain encode the experience as permanently? Sir. Yeah. Next. सर वो जो है हमने बोला एक ही क्वेश्चन करने के लिए परमिट किया है सर लोगों को। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। देखिए ये प्रश्न जो है बाकी स्कूल और बाकी प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज में हम सिलेबस तो पूरा कर ले रहे हैं या कर लेंगे, लेकिन लैब्स हमारे बंद हैं, और जब तक वर्चुअल लैब्स में बच्चे एप्लीकेशन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे? इसके लिए मेरा उत्तर यही है, और मैं इसको बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि सबसे पहले तो टीचर और प्रिंसिपल जो भी बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उनको स्लाइटली मॉडिफाई करें, कस्टमाइज करें, और देखें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल घर में हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। उन प्रैक्टिकल्स को मॉडिफाई करें। जैसे किसी राइटर ने बुक लिखी है और उस राइटर ने 10 प्रैक्टिकल किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दे दिया, आपकी टीचर भी नया प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्यूटी है टीचर की, ड्यूटी है प्रिंसिपल की, इनोवेटर्स की, कि आप जो है 10 नए प्रैक्टिकल क्रिएट करिए लाइट में, 10 नए प्रैक्टिकल क्रिएट करिए हीट में, 10 नए प्रैक्टिकल आप इनोवेट करिए बायो में, 10 नए प्रैक्टिकल इनोवेट करिए आप जो है मैथ में, साइंस में, और कस्टमाइज करिए होम बेस्ड लर्निंग से। क्योंकि आपका घर, आपकी किचन, आपका इन्वायरमेंट, आपकी नेचर किसी बड़ी प्रयोगशाला से कम नहीं है। आपकी प्रयोगशाला में क्या होता है? अल्टीमेटली अगर केमिस्ट्री की लैब की बात करें तो केमिकल्स होते हैं, आपके पास डिफरेंट अपरेटस होते हैं, और बच्चे पढ़ करके उनको इन्वेंट करते हैं। ऐसी 60-70% चीजें आप घर में कर सकते हैं। थोड़ा सा कस्टमाइज करिए अपने प्रैक्टिकल्स को और बच्चों के घर से जोड़िए, पहली सलाह ये है। और किचन में, इन्वायरमेंट में, घर में उन चीजों को कराने का प्रयास करें। नंबर 2, डिजिटल लैब्स, ऑनलाइन लैब्स, ओ लैब्स अवेलेबल है। तो हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया नेट पर जा करके सर्च करें, कंपनियों से बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करें, और ज्यादातर लोग इस पैंडेमिक के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। आप लैब की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ डिजिटल म्यूजियम्स इस समय अवेलेबल है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आपके बच्चे विजिट कर सकते हैं। तो डिजिटल लैब या ओ लैब में भी आप लोग जाएं। और मुझे तो याद है कि 2008 में, आज तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज से 12 साल पहले जब मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल होता था, वहां मैंने जो है इंटरैक्टिव बोर्ड लगाया था, डिजिटल बोर्ड लगाया था। वो डिजिटल बोर्ड में ऑल प्रैक्टिकल्स डिजिटल माध्यम से हो सकते थे। वो इंटरैक्टिव बोर्ड था, बच्चे बोर्ड को टच करते थे, और केमिस्ट्री का, सपोज करिए आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, कौन सा सोल्यूशन कहां से लेना है वो भी वर्चुअल आपके पास आ रहा है। वर्चुअली आपका बर्नर जो है फायर कर रहा है, जल रहा है, और आप केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, एंड देन वो चीजें बम्बार्डिंग हो रही है आगे निकल। आज से नहीं, आज से 12-14 साल पहले वर्चुअल लैब्स अवेलेबल हैं। तो कनेक्ट करिए, और जब स्कूल खुलेगा तो उसको रिवाइज कर लीजिए। जी एकदम सही सर, राइट सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi everyone, I am Sujata Rao, mother of Yashwant Rao, who is studying in class 10 at DPS Shas. I would like to appreciate DPS for their efforts in conducting online teaching, which is perfect blend of scholastic and post-scholastic areas. But I think
Conducting online assessment for school children is not right. It seems to be credible a judge a child by conducting a test. So ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। I agree. Basically, ऑनलाइन क्लासेस टीच करना, पढ़ाना थोड़ा आसान है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को असेस करना थोड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे स्कूल्स इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं कि असेसमेंट में हम कुछ करें। मैं 2 सजेशन दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ एक तो छोटे छोटे, अभी तक टीचर्स को जो प्रैक्टिस थी वो यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, प्री बोर्ड एग्जाम की, उसमें टीचर क्वेश्चन आंसर देते थे। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना ही टेस्टिंग का माध्यम होता था। टीचर ने 10 क्वेश्चंस लिखे, बच्चे को 1 आवर मिला, बच्चे ने उसका आंसर दिया, उसने असेस किया, नंबर मिल गया। ये प्रोसेस तो अभी भी हो सकती है ऑनलाइन। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे डिजाइन आप कर सकते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म इस समय अवेलेबल हैं। यहाँ फिर मैं कहूँगा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने स्कूल में इन्वेंट करें जहाँ टेस्टिंग आसानी से हो सके। और बहुत सारे स्कूल उन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं जहाँ आपके 40 बच्चे एक साथ बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं, और जहाँ मॉनिटरिंग भी हो रही है। ऐसा भी नहीं कि बच्चा कोई गलत काम कर ले रहा है। टाइम फिक्स है, 40 मिनट या 1 घंटे का। क्वेश्चन फिक्स है, सामने कैमरा लगा हुआ, उसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है, और बच्चे लिख करके उसमें दे भी रहे हैं। तो मैं पहले तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का प्रयास करें जहाँ टेस्टिंग भी अवेलेबल है। दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को फ्लोट कर सकते हैं ऑनलाइन। आप मॉनिटर कर सकते हैं ऑनलाइन। बच्चे उनको आंसर लिख करके अपलोड करेंगे और टीचर उनको चेक करके मार्क्स दे सकते हैं। ये हुआ पुराना तरीका कि ऑनलाइन टेस्टिंग करिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए, बच्चों से अपलोड कराइए, इवेल्युएट करिए और मार्क्स बता दीजिए, और लर्निंग क्या हुई, कितने कहाँ इंप्रूवमेंट है, बच्चे को बता दीजिए। लेकिन एक दूसरा तरीका जो इस समय हमारे बहुत सारे स्कूल अपना रहे हैं वो है प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। अपने फिजिक्स की किताब को मॉड्यूल बना लीजिए और फिजिक्स के चैप्टर को प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स बना लीजिए, और उन प्रोजेक्ट में बच्चों को गाइड कर दीजिए। क्या गाइड करेंगे आप? आपका जो प्रोजेक्ट है बच्चों को उसमें किस तरीके से करना है, राइट? आप कॉम्पिटेंसी से प्रोजेक्ट को मैप करिए, आप लर्निंग गोल से प्रोजेक्ट को मैप करिए, और बच्चा जब प्रोजेक्ट को बना करके सबमिट करेगा, अपलोड करेगा, देन एसेस करिए। और 40 बच्चों को, जब 40 बच्चों के प्रोजेक्ट दिखाई पड़ेंगे तो इंटरैक्टिव क्लास होगी, लर्निंग भी बढ़ेगी और बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे भी। तो पुराना रोट लर्निंग का जो टेस्ट का तरीका था वो अभी भी हो सकता है और हो रहा है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दे करके प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट करेंगे तो एक बेटर दुनिया में आप शिफ्ट करेंगे। ये मेरा सलाह है। Hello everyone, this is Khushi, studying in DPS CHAS Standard 10th. If this lockdown continues, how my practical classes, my group dance practice and my music practice going to be conducted? Hello everyone. मैं बच्चे बेटा यही कहना चाहूंगा कि आपका जो घर है वो किसी स्कूल से कम नहीं है, और आप अपनी म्यूजिक क्लास, आप अपनी डांस क्लास और अपने सारे प्रैक्टिकल्स आप अपने घर में कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि पेरेंट और टीचर मिल करके आपको एक एटमॉस्फेयर दें और आपको गाइड करें। वो सारी चीजें आपके घर में हो सकती है और बहुत सारे बच्चे इसको कर भी रहे हैं। जी सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Jai Hind sir, this is Aman Singh from DPS Varanasi, and my question is, sir, will the science students lose out on the competitive edge with the curtailed syllabus? Thank you sir. बेटा हम लोगों ने बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर इंस्टीट्यूशनल से, बॉडीज से, यूनिवर्सिटीज से रिक्वेस्ट की है कि चूंकि हम सिलेबस को कर्टेल कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी उनकी टेस्टिंग हो उसको भी उसके अकॉर्डिंग वो रिड्यूस करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो बॉडीज भी उन चीजों को थोड़ा न थोड़ा, कहीं ना कहीं रैशनलाइज जरूर करेंगी। हमने अपनी रिक्वेस्ट उनके पास भेज दी है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, हमने जो सिलेबस को कर्टेल किया है उसको हमने कट नहीं किया है, डिलीट नहीं किया, हमने रिड्यूस किया है। हमने ये कहा है कि हम बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको सेल्फ ओरिएंटेड तरीके से लर्निंग लेनी है, आपके टीचर को अवेयर करना है, आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी थ्रू पढ़ना है। सपोज करिए कोई भी एक चैप्टर हमने कट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे। आपके पास तो 365 डेज है ही अवेलेबल। स्कूल नहीं है तो आप घर में हैं, और घर में किताब खोल के आपको पढ़ना है, और जहां क्यूरियोसिटी हो, जहां क्वेश्चन हो, जहां डाउट हो, अपने टीचर से पूछ लेना है।
बोर्ड एग्जाम में 30% नहीं आएगा, लेकिन वो 30% आपको अवेयर होना है जिससे लर्निंग गैप ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप भी अपने घर से उसको कट कर दें, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जी 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 सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन। I am Premlata from Vidya Vikas Public School, Ranchi. As a teacher, I have a few questions on my mind. Role plays, enactments, dramatizations play a crucial role in the learning process of any language. It would be really great if you could suggest an effective way of conducting these role play, enactment, dramatization activities for our children, even through the online mode. जी सर, जिस तरीके से आज आप सारे लोग मेरे सामने इस डिजिटल मोड में हैं, वैसे आप अपने बच्चों के साथ सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप वेबिनार कर रहे हैं और इस पे 40 ही नहीं हजारों लोग अवेलेबल हैं, तो आप अपने बच्चों की एक्टिविटी भी इस पर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू कर सकते हैं जैसे आज कर रहे हैं, और आप चाहें तो बच्चों से वीडियो रिकॉर्ड कर देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चे वही करेंगे जिसमें उन्हें आनंद आएगा। तो उनकी टेस्टिंग को, उनके क्लास को, उनकी एक्टिविटीज को जॉयफुल बनाना टीचर का काम। अगर आप जॉयफुल बनाएंगे तो पेरेंट भी आपके बोर्ड पर आएंगे और बच्चे भी आपके उस पे आएंगे। ठीक सर, अगला क्वेश्चन। Respected sir, I Dr. Kumar Prashant, MD Medicine Neuro, Psychiatrist, father of Atharvakshar, a student of class 7. My question is, if the school doesn't reopen soon, the children will start suffering from social anxiety as they are missing the school and peer interaction. Moreover, they will not be able to engage in public speaking. I want everyone to consider into this serious matter. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि चार्ल्स बोकारो के परिवार में आप जैसे डॉक्टर भी हैं और साइकियाट्रिस्ट भी हैं। एक अगला वेबिनार और सेमिनार मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैडम से और मुरली जी से कि बच्चों के लिए आपसे कराएं कि बच्चे किन मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। बच्चों को डिप्रेशन हो रहा होगा, बच्चे थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे होंगे, घर में परेशान होंगे बच्चे, माँ बाप का भी दबाव होगा, टीचर का भी दबाव होगा, बीमार भी हो रहे होंगे। देखिए, हर चीज का एक ही इलाज है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमारे रोग को दूर करने का उपाय बताता है, ठीक है ना। तो अगर आप बच्चों को ट्रेंड करेंगे, अवेयर करेंगे, काउंसिल करेंगे, तो बच्चे इस अवस्था से बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा, उनकी मेंटल और वेलनेस को लेकर के बच्चों से आप कनेक्ट हों और डॉक्टर साहब को ज्वाइन कराइए। पेरेंट्स से भी कनेक्ट करिए डॉक्टर साहब को, जिससे घर में बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने पाए। जी सर, थैंक यू सर। ये एक और लास्ट क्वेश्चन। Hello everyone, this is Anamika, teacher at DPS Chas. During these uncertain days, where panic and fear is spreading faster than contagion, where the anxiety is falling directly on the mind of the little ones. So, I modestly want to ask, will counseling through video conferencing put the same impact as face-to-face interaction does? Thank you. So exactly connected to the previous answer, sir. So a concern है कि face-to-face. I want to give the answer. जी yes. हम सारे लोग मूवीज देखते हैं जी, और ऐसी मूवीज होती हैं जो पूरे जीवन भर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। हम सारे लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, और ऐसी नॉवेल और स्टोरीज होती हैं जो पूरी लाइफ भर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, राइट। कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट हमारे जीवन में होती है जो हमको पूरे जीवन भर के लिए बदल देती है। मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो उतने ही इफेक्टिव हैं जितने फेस टू फेस, और कई बार बेहतर होते हैं, कई बार बेटर होते हैं, क्योंकि बच्चे उसको अपने कमरे में बैठ करके सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बच्चों के ऊपर दबाव नहीं है, किसी भी स्थिति में देख रहे हैं। रिकॉर्डेड चीज को वापस रिवर्स में जाके देखते हैं और सुनते हैं। ऑनलाइन सेशन तो एक बार 40 मिनट के लिए और चला गया, लेकिन सॉरी, जब ऑफलाइन क्लास होती तो वापस चली जाती, लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो बच्चे उसको 10 बार देख सकते हैं, और जब आप कंडक्ट करते हैं तो आप कॉन्शियस होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो उतना ही इफेक्टिव है। और बच्चों के वेलनेस को लेकर के ऑनलाइन सेशंस रेगुलर करते रहें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। जी
Sir, just next question. Hello everyone, I'm Vivek Gupta, teacher at Delhi Public School, Chas. The digital platform has proved boon to us and has connected us optimistically. But what if the adolescent students walk the wrong way? They involve themselves in playing the online games and watching contents not so worthy. Won't it affect the psychological balance? So how can we cope up with this situation? मैं देखिए, आप टीचर हैं और आप पेरेंट भी होंगे और स्कूल के लोग भी और पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बच्चों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये हमारी और आपकी गलतफहमी है कि बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। डिजिटल कनेक्ट अगर बच्चे आप सोच रहे हैं कि आपके गैजेट देने से नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। जिम्मेदारी हमारी आपकी क्या है? हमारी आपकी जिम्मेदारी यह है कि ऐसे एडोलसेंस बच्चों को, ऐसे मैच्योर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कन्विंस करना कि क्या सही है और क्या गलत है। आप ये मत बताइए कि डिजिटल कंटेंट ये देखना गलत है और ये देखना सही है। आप उन बच्चों को सही और गलत की सीख पहले दे दीजिए। तो जब एज ए टीचर आप उनको कन्विंस करेंगे कि अपराध करना गलत है, असत्य बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है, क्राइम करना गलत है और क्यों गलत है इसको प्रूफ करके उनको दिखाएंगे, तो जिंदगी में वो गलत कार्य नहीं करेंगे। आप अपने कंडक्ट से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने बिहेवियर से जब ये प्रूफ करेंगे तो बच्चे उसको सुनेंगे, बच्चे उसको अडॉप्ट भी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो डिजिटल कनेक्ट है, आप इसकी चिंता मत करिए कि बच्चे उसमें वीडियो गेम खेलना तो अच्छी बात है। मैं कहूंगा वीडियो गेम बच्चों के दिमाग को शार्प करता है। कार्टून पढ़ना बहुत अच्छी बात है, स्टोरीज पढ़ना अच्छी बात है, वीडियो गेम्स खेलना भी अच्छी बात है। ये सब चीजें बच्चों के दिमाग को तेज करती हैं। एक लिमिट के बाद कुछ भी करना गलत है। एक लिमिट के बाद तो आप रनिंग करेंगे तो आप गिर पड़ेंगे। एक रनिंग के बाद एक लिमिट के बाद अगर आप जगेंगे तो भी आपका नुकसान। तो हर चीज लिमिट में हो, इसका प्रयास पेरेंट और टीचर को करना है और इसके लिए बच्चों को कन्विंस करना है कि कितना पढ़ना है, कितना सोना है, कितना डिजिटली कनेक्ट होना है, कितना सोशल मीडिया पे होना और कितना नहीं होना है। बाकी चिंता आप मत करिए। मेरे हिसाब से तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के फायदे ज्यादा हैं, कमियां कम है, उनसे बचा जा सकता है। जी सर, लास्ट सवाल फ्रॉम अ पेरेंट। Hello, I'm Shilpa Nagarkar, Soham's mother. My son is in primary class. As a parent, I'm not conversant with the basics of e-learning. Will this affect the learning process of my child? Sir. Okay. मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। 2000 वर्षों में जितनी प्रगति नहीं हुई है उतनी पिछले 100 ईयर में हुई है, और पिछले 100 ईयर में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है उतना पिछले 30 ईयर्स में हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज से 15 साल पहले दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज में एक भी आईटी कंपनी नहीं होती थी, डिजिटल कंपनी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होती थी। आज 15 साल बाद दुनिया की टॉप रिचेस्ट टॉप 10 कंपनीज में 7 कंपनियां आईटी रिलेटेड हैं, डिजिटल रिलेटेड हैं। कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक्स का है। आने वाला समय मशीन का समय है। आदमी की जरूरत हमेशा रहेगी क्योंकि मशीन हम ही बनाएंगे, लेकिन मशीनें हमारे जीवन को आसान करेंगी। कार हमने बनाई, हवाई जहाज हमने बनाया, फोटोकॉपियर हमने बनाया, टेलीफोन हमने बनाया, बल्ब का आविष्कार हमने किया, बिजली का आविष्कार हमने किया, आग का आविष्कार हमने किया। ये चीजें किसने बनाई? हमने बनाई, मनुष्य ने बनाई है। लेकिन फायदा किसे हो रहा है? हमको हो रहा है। कार नहीं होती तो क्या आप 120 की स्पीड में चल सकते थे? ट्रेन्स नहीं होती तो क्या 1000 लोग 1 घंटे एक साथ चल सकते थे? प्लेन्स हमने नहीं बनाए होते तो क्या हम घंटों में दूसरे देश की यात्रा कर लेते? नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमारे इनोवेटिव और क्रिएटिव बच्चे इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना ही फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। आपका बच्चा अगर ई लर्निंग को नहीं पाएगा तो बाकी बच्चों से 10 गुना पीछे रह जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस क्लास से 10 टाइम्स बेटर ई लर्निंग है। और उसका उदाहरण मैं देता हूं, इसमें पेरेंट्स जुड़े इसलिए मैं कहना चाहूंगा।
एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता था अभी तक। बहुत अच्छा टीचर था तो क्लास अच्छी हो जाती थी, एवरेज टीचर था तो 30 वर्षों तक बच्चों का नुकसान होता था। एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है एट ए टाइम? 40 स्टूडेंट्स। अब एक टीचर एक साथ 10,000 बच्चों को भी पढ़ा सकता है। आप इमेजिन करिए कि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट टीचर कोलकाता में है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर चेन्नई में, इवन वन ऑफ द बेस्ट टीचर अमेरिका में है। वो टीचर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक साथ 1000 बच्चों को पढ़ा सकता है। तो अब आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेस्ट टेक्स्ट मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट मिलेंगे। अब आपकी लिमिटेशंस नहीं है कि इतने ही टीचर होंगे तभी ये काम होगा। तो मेरे हिसाब से ई क्लासेज आने वाले समय का भविष्य है, ई लर्निंग आने वाले समय का भविष्य है। और उसको ई लर्निंग को अगर स्कूल वीडियो की तरह लेंगे, वन वे टीचिंग की तरह लेंगे, रोट लर्निंग की तरह लेंगे जैसे पहले होता था, तो पेरेंट कंप्लेन करेंगे। ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल की है कि कृपया आपके टीचर ई क्लासेज को वैसे ना कंडक्ट करें जैसे रूटीन क्लासेज पढ़ाते थे। इनोवेटिव बनाइए, क्रिएटिव बनाइए, डिस्कवरी बेस्ड बनाइए, प्रोजेक्ट बेस्ड बनाइए और बच्चों को क्यूरियस करिए, प्रश्न पूछिए, पढ़ाइए नहीं, पढ़ करके आए और उनके डाउट्स क्लियर करिए। जब ये करेंगे तो पेरेंट्स का भी डाउट खत्म हो जाएगा, तब वो सोचेंगे कि ये ज्यादा बेटर तरीका है और यही आने वाले समय का भविष्य भी है। सर एक क्वेश्चन है जो हमारे ऑडियंस है, एक एकेडमिशियन काफी सालों से रहे हैं एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल में, रमाकांत मित्तल जी। उनका क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल लर्निंग, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ऐसा है कि 21st सेंचुरी स्किल में एक स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बने, वैसे हम आप टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से भी उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। तो अगर आपकी समस्या है कि आप इस समय ऑनलाइन क्लासेस में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो आपसे बेहतर उसका सलूशन कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। तो पहला तो ये कि जब आप बैठेंगे बच्चों और पेरेंट के साथ तो सलूशन आप निकाल लेंगे। फिर भी अगर आप मेरी राय लेना चाहें ऑनलाइन कंटेंट को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, तो देखिए 8 आवर की लगातार क्लास ऑनलाइन क्लास के रूप में नहीं हो सकती है। ठीक, आप ये सोचिए, ये पहले भी बच्चों के साथ इनजस्टिस होता था लेकिन कोई सोचता नहीं था। ठीक है ना? एक टीचर को मैक्सिमम 4 या 5 क्लास मिलती है, बच्चों को कितनी मिलती थी? 8 क्लास मिलती थी। टीचर तो एक क्लास छोड़ करके अपने टीचर मेस में बैठ जाती होंगी, अपने कलीग टीचर से बात भी कर लेते होंगे। बच्चा क्या करता है? वहीं बैठा हुआ है। एक टीचर आई, फिर दूसरी टीचर आई, फिर तीसरी टीचर आई, फिर चौथी टीचर आई और 10 मिनट का ब्रेक, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। लगातार कर्टन रेज होता जा रहा है, टीचर बदलते जा रहे हैं, बच्चे वही हैं। आप कभी बच्चों से पूछिए कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। और उसी में से अगर 50% टीचर इनोवेटिव ना हो, क्रिएटिव ना हो, स्टोरी टेलर ना हो, अच्छे कम्युनिकेटर ना हो, रोड लर्निंग देने वाले हो, एग्रेसिव हो, डोमिनेट करने वाले हो, बच्चों को कंपेयर करके उनको डिग्रेड करने वाले हो, बच्चों को बुरा बोलने वाले हो, तो बच्चों की जिंदगी कैसे चलती होगी? बहुत मुश्किल है 8 घंटे बच्चों को बैठाना। आप बैठ के देखिए, मैं प्रिंसिपल से कहता हूं कि अपने बच्चों की क्लास में 8 घंटे बैठ जाइए, किसी भी एक दिन, एनी डे। बच्चे तो 200 डेज बैठते हैं। प्रिंसिपल के लिए क्या होता है? पेरेंट्स नया आ रहा है, बच्चे नए आ रहे हैं, टीचर नया आ रहा है, समस्या, उसके लिए तो वैरायटी है, पूरा रंगमंच है। बच्चों के लिए क्या है? प्रिंसिपल मैडम अगर बच्चों के साथ 8 घंटे बैठे और उन्हीं 8 टीचर्स को देखें जो आ करके पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाते जा रहे हैं, तब दर्द समझ में आएगा कि बच्चों का असली कष्ट क्या है। देन आप अपने टीचर को इम्प्रूव करेंगे, देन उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, देन उसको कम्युनिकेटर बनाएंगे, देन उसकी जगह नया टीचर लेके आएंगे, देन आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सही सर। अब डिजिटल क्लासरूम के रूप में बच्चे विरोध कर रहे हैं क्योंकि क्लासरूम में बच्चे नहीं कुछ कह पाते थे, लेकिन घर में उनको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर के सामने हम 8 घंटे नहीं बैठ सकते, आंख भी दर्द होगी और पढ़ने में भी समझ में नहीं आएगा। तो तरीका क्या है? तरीका वही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आपके जिस रमाकांत जी ने क्वेश्चन किया है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैं उनको यही आंसर दे रहा हूं कि आपके टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन करें
और अगले दिन आंसर ले, क्वेश्चन पूछे, और बच्चे एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद बच्चे कोप अप कर जाएंगे। पहले दिन 50% बच्चे काम नहीं करेंगे, दूसरे दिन हो सकता है 40% बच्चे काम न करें, लेकिन आफ्टर 10 डेज जब रिगरस प्रयास टीचर करेगी तो बच्चे अपना काम कंप्लीट करने लगेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को वर्क असाइन करिए, उनके पास 24 घंटे का समय है, और जो क्लासरूम ऑनलाइन है उसका मैक्सिमम उपयोग इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से डाउट क्लियर करने में, स्पार्क देने में, मोटिवेट करने में, एप्लीकेशन कराने में और ग्रुप एक्टिविटी कराने में यूज करिए। इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी सर, thank you so much sir for giving a patient hearing and answering all the questions. Shailaja ma'am, I would request you to just sum it up. शैलजा मैम, माइक्रोफोन। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, thousands and thousands of students, प्रिंसिपल मैम। जी प्रिंसिपल, यस मैम। प्रिंसिपल मैम, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, आप कंटिन्यू करें। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, आपका जो मार्गदर्शक रहा है, बहुत ही सिंपल वे में आपने इतने सारे डाउट्स क्लियर किया सर। हम लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वी स्टार्टेड इट हियर इन DPS CHAS, but the way you have explained it, it gives us more confidence and it gives us more clear, the road is very clear, more opportunities. The pandemic has come and it shows that there can be so much of joyful learning experiences. There can be a number of takeaways today, but most important thing I think is the connection we need to establish with everybody, the compassion, the understanding that we need to have with each other, with the children, and the scope that we have, even with this virtual classroom, the digital classroom. The paradigm shift has not restricted us, rather it has given us more opportunities. The canvas is so wide now that people can try everything. Another very important thing is how beautifully you told us that we teachers are the backbone. If a teacher has got so many roles to play, artist, he has to be a theater artist, he can be a poet, he can be a creator, he can be a person who paints. And when you talked about the virtual classes, connecting with children, ye virtual classrooms mein when we go online, when we talk to the children, class teachers have got a very important role. When we take the feedback, it's so touching when the child reacts, when the child talks to us, and when you go for a virtual tour of the school, the child connects so beautifully. And then when he wants us to talk to the parent and say कि मैम मम्मी को ये बता दीजिए, मम्मी को ये बताइए कि हमारे साथ खेलना है. So all these things were coming to my mind when you were telling about experiential learning, when you were talking about the virtual tours and all those experiments. So I'm so thankful to you, sir, and on behalf of everybody here in DPS CHAS, plus all the people who have connected to us across the country and abroad, I extend my heartfelt, sincere gratitude to you for making things so easily. It's so different from what is available from the manuals and understanding. Thank you so much, sir. And of course, I extend my note thanks to our Provost Chairman, Murli sir, for providing us this opportunity, and all the technical team, everybody who stands with me today here to connect with you and to everybody who is out there as participants. Thank you so much, sir. I think sir wanted to say something. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Murli ji, and thank you, Principal Ma'am. एक बार फिर आई थिंक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। एक बार आप सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, मुरली जी को और आपको प्रिंसिपल मैम को। देखिए, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले सिर्फ यही कहूंगा कि बचपन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बहुत संवेदनशील होता है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हम लोग हैं, इंसान है, और इंसानों का सबसे खूबसूरत समय उसका बचपन होता है। बचपन को नष्ट नहीं करना है,
बचपन को कष्ट नहीं देना है, बचपन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट चारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो हम उससे कितनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से चले, अच्छे से बोले, अच्छे से खेले, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े, फिर हम चाहते हैं कि वो अच्छी जॉब प्राप्त करे, फिर हम चाहते हैं अच्छा इंसान बने। इतने सारे बर्डन्स हम शुरू में उसके ऊपर लादते जाते हैं कि इंसानियत उसकी पीछे छूट जाती है। मेरा निवेदन आप सबसे है, क्योंकि आप सिर्फ टीचर ही नहीं हैं, आप पेरेंट भी हैं, और एक बार सेंसिटिव होकर के ये देखें कि आप आज जिस पोजीशन पे हैं, ऐसा नहीं था कि आपके माँ बाप आपको यहाँ देखना चाहते हो। मोर देन 75% लोग अपनी डेस्टिनी खुद तय करते हैं, ये सत्य है। तो आप जो चाहते हैं, मान के चलिए कि 75% बच्चे उसके अलावा कुछ और करेंगे। तो जब ये सत्य है, और ये इसलिए कह रहा हूं, पूरे देश में JEE और नीट सिर्फ इन्हीं दो परीक्षाओं में 40 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन लेस देन 40,000 को। रेस्ट 39.5 लाख बच्चे दूसरी जगहों पे अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। हमारा दबाव, हमारा तनाव, हमारी एक्सपेक्टेशन उनके व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से मोल्ड कर चुका हो, और उनका बचपन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, उनकी जॉयफुलनेस, उनका आनंद नष्ट हो जाता है, और जो नेचुरल चीजें होनी चाहिए, जो इंसानियत होनी चाहिए, वो डिरेल हो जाती है। मैं यही कहूंगा आप सबसे, ये समय ऐसा समय है जिसमें हमें सेंसिटिव रहना है और ये ध्यान रखना है कि बच्चे और बचपन ये कैसे बचे, कैसे आनंद में रहे, कैसे जॉयफुल रहे, कैसे इनोवेटिव क्रिएटिव बने, उसको हमें सिर्फ एक वातावरण देना है। मैं यही अंतिम चीज कहूंगा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है। जिस दिन आप एटमॉस्फेयर दे देंगे, इग्निशन दे देंगे, स्पार्क दे देंगे, इंस्पायर कर देंगे, बच्चे अपनी कैपेसिटी से 1000 गुना आगे निकल जाएंगे, और यही हमारा और आपका सपना होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुरली जी, थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू ऑल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।